Jai Hind students, hope you all are doing well. 26th January is gone and we celebrate 26th January as our Republic Day. And we also celebrated Raftar, the great sports event in our school. I know you all miss both the events, but I'm sure that next year we will celebrate it together and we will enjoy it in double way. So today we are going to learn SS chapter 10. The chapter name is the Constitution of India. Constitution means संविधान. इंडिया का संविधान के बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे. So what we will learn in this chapter: the Constitution of India, preamble to our constitution. Preamble means introduction to our constitution, fundamental rights and duties as an Indian citizen, which is the fundamental rights and duties we have, directive principle of state policy. So government के लिए भी इंडिया के संविधान में कौन कौन सी पॉलिसीज है. सो दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न. So this is the book of the Constitution of India. This is the book of the Constitution of India. Now, what is Constitution? संविधान. संविधान क्या है इंडिया का? फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में या फिर स्कूल में कोई रूल्स होते हैं ना, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स, रेगुलेशंस जो आपको फॉलो करने होते हैं, विच वी हैव टू फॉलो. सो एवरी स्कूल हैज़ इट्स ओन रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट्स यू हैव टू फॉलो इट. अगर आप फॉलो नहीं करोगे, इफ़ यू ब्रेक द रूल, देन आपको क्या होगा? पनिशमेंट होगी एंड द एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू. सो दिस ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रूल्स आपकी एनमेनेक में दिया जाता है ना. तो वैसे ही एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे लिए भी इंडिया की संविधान की एक बुक है. उसमें हमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ है, हमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, हर एक चीज़ इस संविधान में लिखी हुई है. सो दिस इज़ द बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. The Constitution is the ultimate law of the land. Constitution of India एक final law है. It lays down the fundamental principles on which the government and the administrations of a country are based. एक ऐसे प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल मीन्स कि ऐसे उसमें सिद्धांत है जो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री, गवर्नमेंट के अंडर में जो जो एडमिनिस्ट्रेशंस वर्क कर रहे हैं उनके लिए उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ में बहुत सारे ऐसे सिद्धांत है विच द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशंस हैज़ टू फॉलो. The Indian Constitution was framed by the Constituent Assembly, which was set up in 1946. This statement you can underline. The Indian Constitution framed by. कब बना? 1946 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में बना. किसके द्वारा? बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसने, उस असेंबली, उस ग्रुप को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. Once again, the Indian Constitution was framed by the Constituent Assembly, which was set up in which year? 1946. So this paragraph is very important. So you can underline the whole paragraph. The
Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the Constitution Drafting Committee, and Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constituent Assembly. Who was the president of the Constituent Assembly? एक ग्रुप है जो एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, उसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली, और उस असेंबली का प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ओके, द कंस्टिट्यूएंट असेंबली टुक. अब इसको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनाने के लिए कितना टाइम लगा? द कंस्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years, 11 months and 18 days to frame the constitution. कितना टाइम लगा? 2 years, 11 months and 18 days to frame the constitution. So constituent assembly को, जिसने constitution बनाया, उस ग्रुप को बोलते हैं constituent assembly. Took 2 years, 11 months and 18 days to frame the constitution. Okay, once again, the constitution is the ultimate law of land. It lays down the fundamental principle on which the government and the administrations of a country are based. So constitution एक ऐसा law है जिस और उसमें ऐसे सिद्धांत है जो गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री बेस्ड है. The Indian Constitution was framed by the Constituent Assembly, and Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the Constitution Drafting Committee, and the Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constituent Assembly. And it took कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? It took 2 years, 11 months and 18 days to frame the constitution. C. Dr. B.R. Ambedkar, the father of modern India. A grateful nation pay homage to Dr. B.R. Ambedkar, the father of the, he is the ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? चेयरमैन थे. एडिटर जो एडिटर कमेटी के वो चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर आम्बेडकर. एंड वी आर सेलिब्रेटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन द 26th November. 26 नवंबर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है. सी, this is the president, Dr. Rajendra Prasad, the president of Constituent Assembly. जो ग्रुप बना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था इंडिया का, उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. And this is the photo of the Constituent Assembly of India. So you can see that how कितने लोग हैं जो मिल के एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं. Constitution Assembly of India. Now, the Indian Constitution came into force on 26 January 1950. अभी Constitution बनने में it took 2 years, 11 months and 18 days to frame the Constitution. और वो फोर्स में आया. अप्लाई कब हुआ इंडिया में? 26 January 1950. You can underline this statement. The Indian Constitution came into force on 26 January 1950. In the preamble means introduction. कोई भी आप बुक लेते हो उसमें फर्स्ट पेज जो इंट्रोडक्शन का होता है, दिस इज नोन एज द preamble. So preamble to the constitution, it is written that India is a sovereign. Sovereign means कि इंडिया एक सम्राट कंट्री है, शासक कंट्री है. सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी. सेक्युलर कि कोई एक पर्टिकुलर इंडिया में कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो नहीं होता. हर एक इंसान अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कोई भी रिलीजन चूज कर सकता है. सो इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री और इंडिया पर कोई राज नहीं कर सकता है. वी इंडियन पीपल चूज द अवर रूलर.
हम ही अपने पीएम को चूज करते हैं, है ना। सो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्रीय कंट्री मीन्स लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली कंट्री है इंडिया। एंड रिपब्लिक कंट्री, प्रजातंत्र राज्य। So, Indian Constitution came into force on 26 January 1950. एंड इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें लिखी गई है कि इंडिया क्या है। इंडिया इज अ सोवेरियन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री. So this is a picture of the Constitution Day, 26 November. 26 November. We celebrate the Constitution Day. On this day in 1949, the Constitution was adopted, which came into force in January 26, 1950, marking the beginning of new era in the history of India. So this is the preamble, the first page, introduction of the Constitution of India. It is look like this. In your learn well, and on the page number 223, third paragraph, preamble to our Constitution. So this is the same written there in the preamble of the Constitution. So it looks like this is the original picture. Now this is the Hindi translation of the preamble to our Constitution. So preamble में क्या क्या लिखा गया है उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों है. So I am reading here the Hindi translation. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजदारी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्मों और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अग्निकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं. सो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जब पोस्ट में आया तब ये उसके लिए ये समर्पण करने के लिए ये लिखा गया था. So we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic to secure to all the citizens so justice, social, economic and political justice देने के लिए, अगर कोई सोशली, इकोनॉमिक और पॉलिटिकली कोई गुनाह करता है तो उसको जस्टिस देने के लिए, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. लिबर्टी मीन्स आज़ादी किसकी, थॉट्स एक्सप्रेशन करने की, बिलीफ हम जो चीज़ बिलीव करते हैं उसको एक्सप्रेस करने की, बोलने की लिबर्टी. देन फेथ और एंड वर्शिप, प्रार्थना करने की लिबर्टी. सो दीज आर द लिबर्टी हमें दी गई है. इक्वलिटी, वी ऑल आर इक्वल, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड द अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमोंग देम ऑल. कोई भी रिच और पुअर नहीं है, या फिर जेंडर इक्वलिटी भी है कि मैन को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है और वुमन को नहीं मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है. सबके लिए रूल्स कैसे हैं, सेम है. देन फ्रेटर्निटी. सो फ्रेटर्निटी
assuming the dignity of the individual and the unity of integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, to hereby adopt, intake, and give ourselves to this Constitution. Now, democracy. What is democracy? A reading of the preamble makes it clear that Indian citizens have the right to vote and elect their representative to form the government. So, ये preamble हमें समझने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का preamble जो हमने अभी रीड करा वो समझने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई कि हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए हक है. द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. सो ऐसी सिस्टम को बोलते हैं डेमोक्रेसी. नो डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव. नो डिस्क्रिमिनेशन इज द मेड बिटवीन द रिच एंड द पुअर. सो कोई भी भेदभाव नहीं है एक रिच और पुअर में. ऑल द पीपल आर इक्वल इन आवर आइज ऑफ लॉ. हर एक लोग इक्वल है लो के लिए. दिस इज नोन एज द रूल ऑफ लॉ. इसको क्या बोलते हैं? रूल ऑफ लॉ. इंडियन सिटीजन्स ऑल्सो हैव द लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन. सो इंडिया की सिटीजन्स को ये भी लिबर्टी है कि अपने थॉट्स और एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सके, बोल सके, कहीं भी पोस्ट कर सके, कहीं भी बोल सके, ऐसी लिबर्टी है. डेमोक्रेसी. नाउ द short if I give you the short definition of the democracy is the of the people, by the people or for the people. So डेमोक्रेसी मीन्स कि इंडिया के हम जो भी कर रहे हैं, जिसको भी हम अपना नेता बना रहे हैं, वो कैसे है? ऑफ द पीपल है, बाय द पीपल, पीपल के द्वारा है, एंड लोगों के लिए है. सो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी कंट्री जिसमें लोगों के लिए, लोगों द्वारा और लोगों के लिए हर चीज़ की जाती है. Now secularism. Secular means that all religions are equal in the eyes of the constitution. Secular means कि सारे रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन की आइज में कैसे है? एक समान है, एक जैसे है. पीपल आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ their choice. Sovereign means that India is a free country. Sovereign means कि एक इंडिया एज एक फ्री कंट्री है. यू कैन अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट. नो अदर कंट्री कैन इम्पोज इट्स विल अपॉन अर. कोई भी कंट्री, दूसरी कंट्री इंडिया पर शासक अपने रूल्स या शासन नहीं कर सकती. इंडिया अपनी तरह से एक फ्री कंट्री है और इंडिया ही अपना एक रूलर है, राजा कंट्री है. No other country can impose its will upon us. India is the master of its own destiny. इंडिया ही अपने भाग्य का निर्माता है. कोई भी दूसरा देश आके उस पर शासक नहीं कर सकता. So India is a secular country. Secular means, what does the secular means? That all religions are equal in the eyes of the constitution. You can underline this statement that all religions are equal in the eyes of the constitution. And what is sovereign means? That India is a free country. No other country can impose its will upon her. यहाँ पर हर लिखा है. वाई हर इज यूजिंग फॉर द इंडिया? बिकॉज हम इंडिया को क्या बोलते हैं? भारत माता. दैट्स वाई हर इज यूजिंग हियर. हाउ सेक्युलर इज इंडिया? सो यू कैन सी that different religions people, different caste people, different regions peoples live together with harmony. That's why India is a secular country. Hinduism, Jainism, Buddhism, Sikhism, Islam
and Christianity, that all and many other religion, that we all live in unity. Republic. Now what does the republic means? The republic means that the country has no monarch to rule over it. Monarch means सम्राट. Country has no monarch. कोई भी country का सम्राट नहीं है. The people choose their own leaders. हम ही लोग, हमने बोला ना कि इन डेमोक्रेसी मीन्स टू द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. सो द पीपल चूज देयर ओन लीडर्स वो फॉर्म द गवर्नमेंट एंड रन द कंट्री. सो हम ही लोग अपने लीडर्स को वोट दे के सिलेक्ट करते हैं एंड वो फॉर्म द गवर्नमेंट एंड रन द कंट्री. कंट्री को वो लोग चलाते हैं. द लीडर्स आर इलेक्टेड वाया फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड दीज आर नॉट हेरिडेटरी पोस्ट. हेरिडेटरी मीन्स कि इंडिया के जो गवर्नमेंट में वंश परंपरा के अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट नहीं चलती है कि फादर के जो सन है वो चलाएंगे कि अपनी फैमिली में से मेंबर्स चलाते जाएंगे. सो इंडिया में हेरिडेटरी पोस्ट्स नहीं है. इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी है कि वी पीपल चूज अवर, वी कैन चूज अवर लीडर्स. नाउ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस. 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत का संविधान लागू हुआ था. इस दिन हमारे देश गणतंत्र घोषित हुआ था. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था. इस पवित्र दिवस को प्रति वर्ष मनाया जाता है. दिल्ली में 26 जनवरी को समारोह प्रतिवर्ष उत्साह से मनाया जाता है. सभी राज्यों के लोग अपने अपने राज्य की संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं. भारतीय सेना अपने बल का प्रदर्शन करती है और सारे हथियारों को दिखाती है. सेना के जवान तरह तरह के खतरनाक कारनामे करते हैं और लोग तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं. राष्ट्रपति ध्वज को फहराते हैं और सलामी देते हैं. सेना के जवानों को देखकर हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है. सो दिस इज द शॉर्ट नोट अबाउट द 26 January. You can read it. Now the fundamental rights and duties. So which are the fundamental rights and duties we have? So ये सारे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन बुक में. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन सर्टन राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया टू लिव गुड लाइफ एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. द राइट्स ऑफ द सिटीजन आर नोन एज द फंडामेंटल राइट्स. यू कैन अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट. द राइट्स ऑफ द सिटीजन, एज हम इंडिया के क्या है? सिटीजन्स है. तो हमारे लिए जो राइट्स है जो हम कर पाते हैं उसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स. कि ये चीज़ है आप डेफिनेटली इंडिया में रह के कर सकते हो. दीज आर द फंडामेंटल राइट्स. एंड द ड्यूटीज़ मीन्स कि ड्यूटीज़ भी करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा. सो द ड्यूटीज़ आर नोन एज द फंडामेंटल ड्यूटीज़. All Indian citizens are expected to perform these duties. It is important to remember the rights and duties go together. Duties without rights and rights without duties have no meaning. So rights and duties always go together. अगर ड्यूटी है तो राइट्स भी है, राइट्स है तो ड्यूटीज भी है. So fundamental rights are the most important rights that are recognized by the state and enshrined the constitution. Enshrined means कि constitution में प्रतिस्थापित करा है fundamental rights. So क्या rights है? First, rights of equality, rights of freedom, rights against explosion, right to freedom, right to freedom of religion, cultural and educational rights, rights to constitution remedies, and right to education. Now right to equality. The right to equality means that there should be no discrimination of the basis of sex, caste, religion or place of birth. कोई भी भेदभाव नहीं है
इंडियन सिटीजन में basis of the sex, caste and religion and place of birth, the weaker sections of the society are protected by the certain laws. So right to freedom, first right is right to equality, second is right to freedom. Every citizen has the right to express his her views. So as a citizen of India we all have right to express हमारे views कि हम किस टॉपिक के बारे में क्या सोच रहे हैं. सो वी हैव राइट्स टू एक्सप्रेस द व्यूज. Citizens have the freedom to assemble peacefully without arms, make the association, organizations and unions. So सिटीजन्स को ऐसे राइट्स है कि वो अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस, यूनियंस और एसोसिएशन बना सकते हैं, जैसे फार्मर्स एसोसिएशन, वुमेंस एसोसिएशंस, ऐसे एनजीओज होते हैं, यूनियंस होते हैं, एम्प्लॉय यूनियंस होता है. सो ऐसे ग्रुप वो हम बना सकते हैं. पीपल कैन मूव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. हम कोई भी कंट्री के कोई भी स्टेट में, कोई भी सिटी में, कोई भी विलेज में, एनी पार्ट ऑफ इंडिया इन द कंट्री में हम शिफ्ट हो सकते हैं एंड वी कैन सेटल देयर. पीपल कैन प्रैक्टिस ट्रेड इन वट एवर प्लेस दे वॉन्ट. However, this freedom comes with certain restrictions. Some people live in forest areas and are governed by the separate rules which are not applicable to remaining citizens. So this is the equality for all. Rights again explosion. So it means no one can be forced to work without wages and be exploited. Exploit means कि शोषण. Exploitation means शोषण. Children cannot be forced to work. The Indian Constitution prohibits child labor. बच्चों द्वारा किया गया लेबर, काम, बिल्कुल प्रतिबंध है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. जहाँ भी कोई बच्चों से कोई भी काम करवाता है, नॉट आपके घर में नहीं, बट जिस पर बच्चों से इनकम दी जाती हो, ऐसे काम कोई मजूरी करवा रहा है तो उसके अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है. सो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 years कैन नॉट बी फोर्स टू वर्क इन हार्मफुल प्लेसेस सच एज फैक्ट्रीज, माइंस, कारपेट मेकिंग यूनिट्स एंड टोबैको प्रोसेसिंग यूनिट्स. तम्बाकू बनाने वाली यूनिट्स में, कारपेट मेकिंग्स में, माइंस मीन्स और फैक्ट्रीज में 14 years से नीचे के बच्चे को काम नहीं कराया जा सकता. इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स. So next right is right to freedom of religion. It means that every citizen has the right to choose the religion as he wants to know. All religions are to be treated equally by the government. No one can be forced to practice any religion against his or faith. So rights to freedom to religion. We have rights to choose our religion and no one can be forced to practice any other religions against his or faith. हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं आप स्ट्रिक्टली यही रिलीजन फॉलो करो. सो वी हैव राइट्स टू चूज अवर रिलीजन. Next is cultural and educational rights. So our country has a rich cultural heritage. There are many religious groups like Hindu, Muslim, Christian, Sikh, Parsi, Buddhist, etc. Each group has the right to follow its own customs and traditions. Customs means कि रिवाज और परंपराएं हर एक ग्रुप, हिंदू जो होते हैं, हिंदू लोग वो अपने रिवाज, कस्टम और ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं. मुस्लिम्स होते हैं अपने रीति रिवाज फॉलो करते हैं, सेम एज क्रिश्चियन, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट. सो हर एक ग्रुप के, हर एक रिलीजियस ग्रुप के लोगों को ये फ्रीडम है कि वो अपने कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस फॉलो करें. दे ऑल्सो हैव अ राइट to set up their own schools and places of worship in any part of Indian territory. So
उनको ये भी राइट्स है कि वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग स्कूल्स भी ओपन कर सके और वर्षी प्रार्थना के लिए प्लेसेस लाइक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, प्रार्थना के लिए प्लेसेस भी बना सके. सो we all have the right to constitution. Next right is right to constitutional remedies. It means that everyone has a right to ask for justice in a court of law if he or her fundamental rights have been violated by any other person or office of India. अगर हमारे अगेंस्ट, हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई एनी पर्सन और ऑफिस में हम कुछ उल्लंघन हो रहा है, वायोलेटेड मीन्स उल्लंघन, राइट्स ब्रेक हो रहा है, तो हम जस्टिस के लिए, न्याय के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं. सो वी हैव द राइट टू आस्क फॉर जस्टिस इन अ कोर्ट. So right against explosion, no child labor. Now the last right is right to education. The addition of this right was done through introduce a new article 21A in the chapter of fundamental rights. इस जैसे आपकी बुक में चैप्टर्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बुक में चैप्टर्स होते हैं. तो 21A आर्टिकल में जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें ये एडिशन हुआ था एजुकेशन राइट का. इट प्रोवाइड्स एवरी चाइल्ड बीइंग 6 to 14 years एज टू गो टू स्कूल. Government provides free and compulsory education for the children up to 14 years age. 14 years तक हर एक बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन लेना है एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड गवर्नमेंट को करना है. दिस इज द राइट टू एजुकेशन. These rights enabled every citizen to understand that claim his or right. So this is the cultural educational rights. So different types of religious and different types of heritage are there. And this is the Right to Education Act. Now the fundamental duties. If we get so many rights that as an Indian citizen हमें कुछ duties भी follow करनी है. So as a citizen of India, we are expected to perform certain duties. Some of these duties are obey the constitution and respect this ideology. Ideology means विचारधारा. हमें constitution को obey means उसको रिस्पेक्ट देनी है, सम्मान करना है और आज्ञा का पालन करना है और इसकी विचारधारा का पालन करना है. रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की भी रिस्पेक्ट करनी है. फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड अवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. जो नोबल आइडियाज थे, जो इंडियन लीडर्स, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके द्वारा जो इंडिया के लिए इंस्पायरिंग आइडियाज थे, उनको फॉलो करना है. सो प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी. पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है. इंडिया की यूनिटी को भी प्रोटेक्ट करना है. इंटेग्रिटी मीन्स सत्यनिष्ठा, ईमानदारी को प्रोटेक्ट करना है, ईमानदारी से रहना है. प्रोमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ. जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको भी प्रोटेक्ट करना है. डेवलप अ साइंटिफिक एटीट्यूड. अंधश्रद्धा में नहीं आना है, साइंटिफिक एटीट्यूड से रहना है. Ensure the education of our children between the age of 6 and 40 years. Now, ये तो बात हुई कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी हैव सम राइट्स एंड ड्यूटीज. नाउ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो द बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें स्टेट गवर्नमेंट स्टेट कुछ प्रिंसिपल्स है जो गवर्नमेंट को भी फॉलो करने हैं. सो
Our constitution has laid down some important principles for the government to follow. These principles are the fundamental for the government of the country. It is the duty of the state to apply these principles while making laws. These are called डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स को जो गवर्नमेंट के लिए बनाए गए हैं उसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट policy are: the government should provide better living conditions for all citizens. So government को better living conditions provide करनी है. The government should provide work for all and women. गवर्नमेंट को वर्क भी प्रोवाइड करना है कि कोई भी अनएम्प्लॉय ना रहे. सो वुमन एंड मैन को वर्क मिल सके उसके लिए भी गवर्नमेंट को वर्क करना है. द गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ द scheduled caste, scheduled tribes and weaker section of the society. सो ऐसी स्केड्यूल कास्ट है जिसमें लोग ज़्यादा पुअर है, वीक है, आदिवासी जनजाति है, वीकर सेक्शंस जो है उनके लिए गवर्नमेंट को उनकी जो लिविंग कंडीशंस है उनको इम्प्रूव करना है. द गवर्नमेंट शुड promote equal justice and provides free legal aid to the poor. गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना है कि रिच एंड पुअर के लिए कोई भी भेदभाव ना रहे, पुअर को भी इक्वली जस्टिस मिले. द गवर्नमेंट शुड प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल एंड कोऑपरेटिव लेवल इन रूरल एरियाज. सो गवर्नमेंट को प्रमोट करनी है ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रीज जो रूरल एरिया जहाँ पर कुछ डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पर भी ऐसी इंडस्ट्रीज डेवलप करके वहाँ के लोगों को उनके लिविंग को इम्प्रूव कर सके. द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी. द गवर्नमेंट शुड प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमन. सो गवर्नमेंट को ऐसे प्रिंसिपल को भी प्रमोट करना है कि मैन एंड वुमन को अपने वर्क के लिए इक्वल पे मिले. ऐसा नहीं कि दोनों ने मैन एंड वुमन ने वर्क तो सेम ही करा बट मैन के लिए ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है और वुमन को नहीं मिल रहा है इतना. सो ऐसे भेदभाव नहीं होना चाहिए. सो वो बात भी गवर्नमेंट को प्रमोट करनी है. So now in this chapter we have learned that our constitution came into force on 26 January 1950. The constitution makes people aware of their rights. It is important to remember that rights and duties go together. Duties without rights and rights without duties have no meaning. Our constitution has laid down directed principle of state policy to be followed by the government. So here children we have completed the chapter. First watch the video carefully. If you don't understand any topic then watch it again, listen it properly, then read the chapter. If you don't understand anything then make a note. So Friday we will solve all the exercise and during the exercise I will explain the chapter. Okay, so children take care of your health, be happy and healthy. Thank you.